Hello, everybody. Namaskar, सबको. And once again, I hope you are all well and all safe. These are crucial times for all of us. The good news is the infection curve has started to flatten in most parts of the world. And I've read new research that even in India, it's coming on a very slowing or flattening trajectory. So that's on the good news part. Now let's dive in. There's a lot of topics and a lot of subject matter to cover today. So what I know for sure, um, all will not be covered in this session. Right? So the topic is essential business upskilling for our business owner friends. And while I know not everything will be covered in this short session, this is where I'll be attempting to cover this deep subject in a series of webinars. And I've been requested that to cover this presentation in a dual language format, Hindi and English. So if that's okay with you all, you could give me a thumbs up, or you can also communicate in a chat mode with me and give chat messages. So I could continue to have your feedback. Right. सो टॉपिक ये है बिजनेस ओनर्स के लिए और बहुत क्रूशियल है आज के वक्त में. तो जो मेरा सबसे पहला रिकमेंडेशन होगा आप सबके लिए, because there will be some solid content. I come from a business background, right? So I would recommend if you could all get your notepads and pen to take notes in between, because there will be some real content coming your way, and it will be helping all of you if you could take certain notes, because when I'm speaking about certain suggestions or something, it can help in particular relevant your business or somebody else's business. But I'll be covering because across all businesses, so it will be helpful. So this is the time, if you can, have your notebooks and pens ready to take notes, right? Your questions can come in as a chat form. You can type it, or possibly you could later email it to me, or you could ask your questions in the WhatsApp groups that and the Facebook support groups that we have for this session. And I will attempt to respond to all of you across your mediums. So moving ahead to the next slide. This is the agenda. If you see, there's a 9-point agenda we have here, right? And if you go through the agenda, it's quite comprehensive, right? There is a 9-point agenda. So what we are doing today, we are covering what is the situation, essential situation. We are looking at what are the milestones that we hope to go from. We are hoping to focus on what really matters for each of our businesses. And then there's a section on deep dive into business finance. And there's further another section, deep dive into business development. And when I say business development, it's taking your business from 10% to 10x, 10x meaning 10 times. So that's the growth path that we are wanting to track. So if we do certain processes and stuff, we can take it from 10% to 10x. And the last bit is the daily question process for success. So going ahead. Now, here's a bit of introduction about me. For all of you who do not know me so far, you are seeing me for the first time. And I've been doing 3 things. I've done 3 things in my life. In my 29 years of, you can say, professional journey so far. 1, I have learned and executed business process. एक होता है business process सीखना, और एक होता है business process को execute करना, right? तो ये execution मैंने किया है पिछले 29 में से 25 सालों में, because 25 सालों में मैं corporate जगत में मैंने काम किया है. उन 25 सालों में मैंने business process implement की है, मैंने management implement की है, और मैंने leadership दी है businesses को, teams को in the corporate world 25 सालों में. और ये 25 साल मैंने बिताए हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, राइट? ये मेरा कॉर्पोरेट लाइफ. तो ये एक काम किया मैंने लाइफ में. दूसरा काम ये किया था मैंने कि कई लोगों की मैंने मेंटरिंग की है इन द कॉर्पोरेट लाइफ. मेंटरिंग मतलब जब आपके जूनियर मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, उनको ग्रो करना और उनको ग्रूम करना, राइट? तो ये करते करते कई बार मुझे फीडबैक मिलती गई उन्हीं मैनेजर से कि बॉस
आप इसमें बहुत अच्छे हो। तो वो फीडबैक मिलते मिलते एक बोलते हैं ना ट्यूबलाइट मोमेंट था कि व्हाई नॉट आई डू दिस नाउ फॉर 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 थिंग्स दैट आई लव, राइट? सो वो मैंने शुरू किया और उसके बाद आई हैव पार्टनर्ड विद बिजनेस लीडर्स टू हेल्प देम बिल्ड हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस दैट गेट रिजल्ट्स फॉर देम। और ये मैं काम कर रहा हूँ पिछले 4 वर्षों से अक्रॉस दुबई एंड मुंबई, राइट? एंड तीसरा काम जो मैंने किया है, इसको बोलते हैं अचीविंग समथिंग, एंड दैट अचीविंग समथिंग वाज अ बाय प्रोडक्ट। एक होता है आप कोई प्रोसेस करो और उसके बाद एक रिजल्ट आता है, तो एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो वो बाय प्रोडक्ट था एक जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सम थिंग्स दैट यू डू। एंड व्हाट आई हैव डन, जिसके वजह से ये बाय प्रोडक्ट आया हैप्पीनेस का, सो व्हाट आई हैव डन इज बेसिकली आई हैव moved around the world connecting with new friends across 25 countries in my journey, in my corporate journey. And then I've been learning from world class investors जैसे वॉरेन बफे हो गए और उनके गुरु हो गए, एंड ऑफ कोर्स इंडियन कई सारे इन्वेस्टर्स हैं। और उसके बाद मैं भी काफी एक्सपीरियंस्ड अभी एक्सपर्ट इन्वेस्टर बन गया हूँ, अपने फंड्स मैनेज करता हूँ ऑफ कोर्स। Third is I took a deep dive into meditation and spirituality, which kind of gave me the grounding. And fourth is, importantly, I have been a proud daddy for 2 great kids and a great loving life partner. So that's a small introduction about me. Now, going ahead. So, this is the situation that we are in today. ये हमारी आज की वस्तु स्थिति है जिसे कहते हैं। एंड अभी इसमें हो क्या रहा है कि पहले तो सिचुएशन है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सारा काम धंधा बंद है, ऑफिस बंद है, वर्कशॉप बंद है, फैक्ट्री बंद है, फिनिश गुड्स हैं जो ट्रांसिट में हैं। एंड ओके, सो लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति बनी हुई है वो है अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी के कब शुरू होगी सारी बिजनेस एक्टिविटी। एंड व्हेन आई मीन बिजनेस एक्टिविटी व्हिच इज बिल कलेक्शंस फॉर एग्जांपल, एंड द बिल पेएबल्स वो कैसे करेंगे, प्रोडक्शन जो स्टॉक हुआ उसको कैसे करेंगे, एंड ऑफ कोर्स मंथली बिलिंग हमारी कैसे होगी। और इसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे लाइबिलिटीज तो बनी हुई है, सैलरीज है, रेंट है, एक्सपेंसेस है, वो सारी लाइबिलिटीज है। और इन्वेंट्री जो कि नॉन परफॉर्मिंग है उसको कैसे टैकल करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस लोन्स हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए तो मोरेटोरियम मिल गया राइट नाउ, इट्स अ टाइम बीइंग इफेक्ट। एंड ऑफ कोर्स वी हैव जिसको बोलते हैं मैंडेटरी टैक्स फाइलिंग इम्प्लीकेशंस, जीएसटी अपलोड्स, तो उसके लिए भी सरकार ने अभी थोड़ी बहुत राहत दे दी है। तो नोइंग दिस सिचुएशन, अभी बहुत ही स्ट्रेस है जिसका मैंने फीडबैक लिया था सारे पार्टिसिपेंट से इस वक्त। देयर इज क्वाइट अ स्ट्रेस इन द सिस्टम। सो एक बाहर जब सेमिनार था, मैं पिछला मुझे याद आता है, उस सेमिनार में जो स्पीकर था उसने क्या किया, तो आई जस्ट कन्वर्ट इट टू अ 2000 रुपीज नोट, कि उसने एक 2000 का नोट ऐसे ऊपर हाथ में पकड़ रखा था। और फिर उन्होंने पूछा स्पीकर ने पूरे ऑडियंस को कॉर्पोरेट सेमिनार में कि हु वांट्स दिस नोट, आई विल गिव इट टू वन। एंड देयर आर सम 150 और 200 हैंड्स व्हिच वेंट अप, हाँ मुझे दे दो, मुझे दे दो। फिर उसने क्या किया स्पीकर ने, उसने नोट को थोड़ा सा क्रम्पल कर दिया अपने हाथ में, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो, इस स्लाइड में देख रहे हो, क्रम्पल कर दिया। अभी इसके बाद पूछ रहे हैं ये नोट किसको चाहिए अभी, तो फिर अगेन दैट 150-200 हैंड्स वेंट अप के आई वांटेड। फिर उस स्पीकर ने क्या किया, उस नोट्स को पूरा क्रम्पल करके नीचे जमीन पे डाल दिया और उसमें स्टैंप कर दिया, मतलब उस पे नीचे बूट लगा करके उस पे गंदा कर दिया। अब बोला अब ये नोट कौन लेना चाहेगा, इनमें से किसी एक को दूंगा। फिर सारे हाथ ऊपर चले गए कि हाँ जी हम सबको ये नोट चाहिए, हम में से किसी एक को दे दो। पॉइंट ये है कि इंपॉर्टेंट लेसन, वट एवर हैपन्स टू द मनी, राइट, यू स्टिल वांट इट। इट मीन्स उसकी वैल्यू नहीं गिरी कभी, उसकी वैल्यू अब भी 2000 रुपए थी, भले वो गंदा हो गया, भले वो क्रम्पल हो गया, राइट। और हमारे लाइफ में भी ऐसी कई बार सिचुएशन आती है कि लाइफ हमको क्रम्पल कर देती है, ग्राइंड कर देती है, धूल में मिला देती है, बट और कभी कभी हमारे डिसीजन खराब हो सकते हैं, कभी कभी हालात खराब हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल काम का नहीं हूं, वर्थलेस जिसको बोलते हैं। बट नो मैटर व्हाट हैज हैपेंड और व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यू मिस्टर बिजनेसमैन, जिसने पहले एक बिजनेस खड़ा किया है, जिसने पहले एक बिजनेस चलाया है, यू आर वन हु विल नेवर लूज योर वैल्यू। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, यू आर स्पेशल, डोंट एवर फॉरगेट इट। So that's the message I wanted to give with this slide. So now going to the next slide. Here's I can help you navigate in this situation. तो कैसे करेंगे navigate?
इसको 3 खंड में बांटेंगे। एक्शन क्या लेना है उसको 3 खंड में बांटेंगे। एक है 90 दिन का प्लान, 90 दिन मतलब 3 महीने का प्लान इमीडिएटली खुलने के बाद। एक है 270 दिन का प्लान, तो 3 महीने के बाद 9 महीने का प्लान, राइट, तो वो 270 दिन का प्लान। और उसके बाद है 365 दिन के बाद का प्लान, तो साल के बाद का प्लान। तो ऐसे 3 हिस्सों में, 3 खंडों में हम अपने बिजनेस पे एक्शन प्लान करेंगे, जिससे कि पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा बिजनेस में और हम इस स्थिति से बाहर आ पाएंगे, राइट। गुड। सो इसमें सबसे बड़ी सिचुएशन होती है, मैंने डिफाइन किया है कि 90 दिन में क्या करना है। तो 90 दिन में पहला फोकस है कि बिजनेस कंटिन्यूटी, कि मेरा बिजनेस चलता रहे, ऐसा मैं प्रयत्न करूं कि मेरे बिजनेस पे रुकावट ना आए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात दूसरी, कि मेरा बिजनेस में कैश फ्लो मैनेज करना है मुझे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की डेट में। एंड ऑफ कोर्स तीसरा, अडॉप्ट लीन मॉडल। अब ये कुछ मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट टर्म्स हैं जो मैं चाहता हूं कि दीज आर स्किल्स और ट्रांसफरेबल स्किल्स। ट्रांसफरेबल मतलब कॉर्पोरेट से एसएमई जगत में ये ट्रांसफर कर दिए जाए, तो आप इसको अडॉप्ट करके, आप इसको अपने बिजनेस में ढाल के, यू कैन एक्चुअली मेक योर बिजनेस स्ट्रॉन्ग, यू कैन मेक योर बिजनेस स्केलेबल, राइट। सो ये 90 दिन का प्लान। उसके बाद है 270 दिन का प्लान, जिसमें हम फोकस करेंगे सस्टेनेबिलिटी पे। सस्टेनेबिलिटी मतलब पहले हम कंटिन्यूटी पे फोकस करेंगे कि पहले चलता रहे, फिर सस्टेनेबिलिटी के उसको कैसे मैं आगे के लिए सस्टेन कर सकूं, कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा बिजनेस चलता रहे, ऐसा सस्टेनेबिलिटी का फोकस। फिर उस सस्टेनेबिलिटी के लिए जो उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया है उसको फिक्स करने हैं, वो करने हैं, और सस्टेनेबिलिटी को बिल्ड करना है विथ वेरियस प्रोसेसेस। एंड लॉन्ग टर्म प्लान साल का, हमको ये सस्टेनेबिलिटी को ड्राइव करना है कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने सस्टेनेबिलिटी का मॉडल डाल दिया उसके बाद मैं इसको भूल जाऊं, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। नो, इट डज नॉट वर्क दैट वे। यू हैव टू प्लान द फ्यूचर। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं गवर्नेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रयोग और उसके प्रोसेसेस को मुझे अपने बिजनेसेस में ढालने हैं। ओके, ग्रेट। सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट। ओके, सो सबसे बड़ी टॉपिक जो है आज की डेट में, इट्स अबाउट कैश फ्लो। सो लेट्स डिफाइन कैश फ्लो। आर यू ओके, यू नो, with the term cash flow? What does it mean? So what the term cash flow means is total amount of money being transferred into the business and out of the business. That's what cash flow means. So basically, simple terms, cash coming in the business and out of the business. And this incoming and outcoming affects our liquidity of the business. So this is an important topic. And cash business में आता कहाँ से? कैश बिजनेस में आता है जब एक मालिक, बिजनेस ओनर, अपने बिजनेस में इक्विटी कैपिटल कैश डालता है, तो वहां से इनकमिंग कैश आती है। फिर और कैश कहां से आती है? अगर आपने कोई बैंक लोन लिया है तो वहां से कैश आ रही है। तीसरा, कोई कस्टमर एडवांसेस दे रहे हैं आपको, तो वहां से कैश आ रही है, राइट। तो और आपने कोई प्रोडक्ट बेचा और उसकी रिसीवेबल्स आपके पास आ रही है, तो वहां से कैश आ रही है, राइट। तो इसको बोलते हैं बेसिकली कैश इनकमिंग। अभी कैश बाहर कैसे जाती है? जब आप किसी को माल बेचते हो, और जाहिर सी बात है हमेशा कैश में तो नहीं बेचते, आप उधार में बेचते हो, तो कैश आपके सिस्टम से बाहर गई। फिर आपने अपने कंपनी से कोई इन्वेस्टमेंट किया, आपने कोई प्लांट खरीदा आपके ऑफिस के लिए, आपके दफ्तर के लिए कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी खरीदी, तो कैश आपकी बाहर चली गई, राइट। फिर आपने कोई डिविडेंड पे किया, और आपकी सारी बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होती है, जो आउट होती है, इसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं। तो दो चीज है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो व्हाट इज एसेंशियल इज, एट एनी टाइम, बिजनेस का मूल मंत्र ये होना चाहिए कि एट एनी टाइम मेरे पास इतना कैश रहे बिजनेस में कि मेरी नेक्स्ट लाइबिलिटी जो आ रही है, जो नेक्स्ट बिल पेएबल आ रहा है, उसको मीट करने के लिए मेरे पास उतना कैश रहे मेरे बिजनेस में। तो अभी कैश इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो क्या ज्यादा होना चाहिए? नहीं। कम होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ना जरूरत से ज्यादा, ना जरूरत से कम। बस उतना कैश हो जितना कि मेरी नेक्स्ट लायबिलिटी मीट हो रही हो। क्यों? अगर कम है कैश तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी मीट नहीं होगी, कोई चेक बाउंस हो जाएगा, कोई बिल पे नहीं होगा, और फिर कोई आप पर केस कर देगा। तो कम होना पाप है। ज्यादा होना, इज इट गुड? नहीं, ज्यादा होना भी सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि कैश अगर ज्यादा है तो वो कमाई नहीं कर रहा आपके लिए, राइट। इट्स
वेस्ट एसेट, इट्स सिटिंग देयर अर्निंग व्हाट, आपके करंट अकाउंट में तो कुछ भी नहीं अर्न कर रहा वो, राइट? तो ज्यादा पड़ा हुआ कैश भी सबसे बड़ा पाप है। तो उतना ही कैश होना चाहिए जितना कि आपकी नेक्स्ट लाइबिलिटीज जो आ रही हैं, समझो हफ्ता या 10 दिन की, उतना कैश होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो अगर इसको अभी अंडरस्टैंड करते हुए हम जा रहे हैं, तो एक नेक्स्ट जो ग्राफ है इसमें बताया है कैसे कैश फ्लो चैलेंजेस होती है जो एसएमई बिजनेसेस की, और कैसे जब पीक साइकिल्स आती हैं, जब बिजनेस के प्रॉब्लम साइकिल्स आती हैं, तो कैसे ये पीक हो जा रहा है। और इससे काफी तकलीफ होती है कि आपकी एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल, जिसमें कैश आपका जो बिजनेस में काफी दिन तक स्टक हो जाता है, तो अब इसको अनस्टक करना है हमको, इसको जल्दी से एग्जिट कराना है। तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कई बार बैंक बोलते हैं कि कई बार हमारे लोन गए हैं एसएमई सेक्टर में, और ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा एसएमई सेक्टर को बैंक लोन्स देती हैं। बहुत ही कम एसएमईज ऐसे हैं जिनको एक्चुअली जो फॉर्मल इकोनॉमी या फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन्स ले पाते हैं। पर सबसे बड़ा कारण जब वो लोन खराब होने का ये है, और ये रिसर्च, ये सर्वे की गई है जिसमें बताया गया है कि पेमेंट डिले क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री इशू। एसएमई सेक्टर की जो इन्वेंट्री होती है, जो आपकी फिनिश गुड्स होती है, या वर्क इन प्रोडक्शन होता है, या कच्चा माल होता है, ये काफी दिनों तक पाइल ऑन रहता है और इसी में आपका कैपिटल फंसा हुआ रह जाता है, उसकी रोटेशन नहीं होती, इसकी वजह से वो वर्किंग कैपिटल की रोटेशन नहीं हो पाती। या फिर लॉस इन बिजनेस हुआ, जैसे कि अभी ये लॉकडाउन सिचुएशन है कि आपका नेक्स्ट रेवेन्यू आई नहीं और आपका कैश फ्लो उसमें फंस गया। तो ये ग्राफ बता रहा है वेरियस परसेंटेजेस इंडिया का, बता रहा है कि कैसे आपका कैश इसमें फंस जाता है। तो अभी क्या क्या एक्शन पॉइंट ले सकते हैं, उसको हम डिटेलिंग करना शुरू करते हैं। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं इस ग्राफ के द्वारा कि सेंटर में कैश फ्लो है, बिकॉज बिजनेस का एसेंशियल एलिमेंट जो आपको मॉनिटर करना है वो है कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो किन किन लीवर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है? लीवर मतलब जैसे हम क्रैंक करते हैं और कोई चीज ऊपर जाती है तो उसको लीवर बोलते हैं। और ये जो आप सर्कल के आज इर्द गिर्द देख रहे हो, तो कैश फ्लो किससे अफेक्ट होती है? अकाउंट्स है, फाइनेंस है, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, लीगल है, बिजनेस डेवलपमेंट है। तो इन सब एक्टिविटीज से कैश फ्लो इन्फ्लुएंस होती है। और इस पूरे वेबिनार सीरीज में मैं आपको हर एक बटन पे, हर एक बिजनेस प्रोसेस पे, हर एक आयाम पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कैसे आप कैश फ्लो को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ये बेसिकली एक जैसे बताऊं आपको, मिनी एमबीए सेशन चल रहा है बिजनेस ओनर्स के लिए। जैसे मैंने कहा, ये सब ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं जो कॉर्पोरेट्स प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट हम इसको एक लोअर स्केल पे हम भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसएमबी ओनर्स, राइट? सो गोइंग अहेड, द फर्स्ट पार्ट। तो here's how I can help you execute in the first 90-day plan, और इसमें डिस्कशन हो रही है अभी कैश फ्लो पे फोकस करने की। तो इसमें अभी 5 मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, आप इसको नोट कर लें और मैं इसके बारे में आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा। नाउ व्हाट इज, आप एक बनाइए फुल लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, राइट? डेटर्स वो जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स वो जो हमारे सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं। तो अभी क्या क्या कर सकते हैं? अभी हर एक एंगल को मैं पकड़ पकड़ के आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? सो अभी सप्लायर्स से शुरू करते हैं। तो सप्लायर्स के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए? यू ऑलवेज हैव टू पे द सप्लायर्स एट द राइट टाइम, राइट? ना ज्यादा देर से, ना पहले। दैट शुड बी द फर्स्ट पॉलिसी। सो आइडियली होना क्या चाहिए कि मनी जो आपकी कैश है वो पहले रिसीवेबल से पहले आ जाए, मतलब कस्टमर से जो आपने बिलिंग किया है उससे पहले आ जाए, और फिर मनी गोस आउट। तो मनी कम्स इन फर्स्ट एंड देन मनी गोस आउट। अगर ये आप इंप्लीमेंट कर सको तो दैट्स द बेस्ट मंत्रा टू मैनेज कैश। सेकंड, सप्लायर्स के ही रिलेटेड, आप इस वक्त पे आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से क्रिटिकल सप्लायर्स हैं, क्रूशियल फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी, और कौन से नॉट सो क्रूशियल फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। आप इनको दो सेग्रीगेट कीजिए, दो भागों में। अभी इनमें आप नेगोशिएट कीजिए उन सप्लायर से जो बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए जरूरी नहीं है, उनसे नेगोशिएट कीजिए कि 3 महीना या लॉन्गर आपको पेमेंट टर्म थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो इन अ रिक्वेस्टिंग टर्म, यू हैव टू गो इन अ हम्बल टर्म, एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज के कौन से सप्लायर आपके लिए जरूरी हैं इस वक्त। तो जो जरूरी हैं उनके साथ आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करके, ना ज्यादा डिले करके, तो वो एक आप दूसरा काम करें।
तीसरा, अगर आपके पास लकीली, इफ यू आर द लकी पर्सन, कैश है इस वक्त आपके सिस्टम में, तो उसका फायदा उठाइए और उस कैश से आप सप्लायर से अर्ली पेमेंट डिस्काउंट आप नेगोशिएट कर सकते हैं। मतलब आपने सामान का डिस्काउंटिंग कर दी ताकि जब आप बेचें उस सामान को तब आपकी मार्जिन ज्यादा बने, वो आपकी कमाई ज्यादा बढ़ जाए। तीसरा। चौथा क्या कर सकते हैं आप? चौथा ये कर सकते हैं, यू कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जब मैं करता हूं एग्जीक्यूट, तभी उस दिन इंस्टेंटली आईएमपीएस मोड में निकल जाती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मेरा ड्यू डेट है 30 अप्रैल, तो मैं 30 अप्रैल की सवेरे को ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूं और उससे मेरा एक दिन पहले ट्रांसफर करना या कुछ और मीन से चेक बनाना हफ्ते भर में और कैश देना, वो मैं बच जाता। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से जस्ट इन टाइम पेमेंट हो सकती है, एंड दिस ऑल्सो इंप्रूव योर कैश फ्लो। तो ये हो गई सप्लायर रिलेटेड 4। इसमें और भी बातें आ सकती है और आप इसमें फीडबैक दे सकते हो, राइट। अभी आते हैं हम कस्टमर के रिलेटेड, राइट। तो कस्टमर्स के साथ क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई कोई कस्टमर्स का रनिंग बिजनेस है या कोई बल्क ऑर्डर्स हैं, तो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर कुछ एडवांस दे दो आपका प्रोसेस शुरू करने के लिए, यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगी हमको। सो एक तो वो कर सकते हैं। फिर बाद में आप जिन कस्टमरों को आपने बिल किया हुआ है ऑलरेडी, तो उनसे आप नेगोशिएट कर सकते हो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, तो उनको इंसेंटिव दे सकते हो। जैसे सप्लायर के साथ आपने किया वैसे आप अपने कस्टमर के साथ भी कर सकते हो। तो यू कैन आस्क फॉर अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। जिन कस्टमरों के पास बहुत ज्यादा आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई हो, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है, तो अभी कस्टमर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा पेमेंट कुछ उसके लिए दे दो, राइट। फिर बाद में ये हो गया कस्टमर का। अभी एक्सपेंसेस पे आते हैं। तो एक्सपेंसेस पे जहां आपका मे बी ऑफिस है, अगर रेंटेड है या जैसे दुकान है या मॉल है, आज की डेट में काफी लोग कर रहे हैं कि ये नेगोशिएट कर रहे हैं कि भाई हमारा रेंटल लोअर कर दो, गिरा दो, या बोल रहे हैं कि वेव कर दो, क्योंकि 1-2 महीने तक हमारा बिल्कुल ही बिजनेस बंद था, तो आप इसको प्लीज रेंटल को वेव कर दो। तो लैंडलॉर्ड भी बड़े काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग मोड में है। और आरबीआई ने जो हमको अलाउ किया है आज की डेट में बैंक मोरेटोरियम। सो मोरेटोरियम क्या अलाउ कर रहा है कि आपको 3 महीने के लिए आपके लोन्स को फॉरवर्ड करना हेल्प कर रहा है। उससे बड़ी हेल्प क्या हो रही है कि आपका कैश फ्लो मैनेज हो रहा है। सो आरबीआई इज अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास इनकमिंग कैश है नहीं, उतना तेजी से आ नहीं रहा, बट 3 महीने का टाइम दिया। आप इस 3 महीने में, फॉर एग्जाम्पल ये लॉकडाउन हुआ 40 दिन का, अभी 40 दिन के बाद अगर आप प्रयास करो और जल्दी जल्दी कैश लाना शुरू करो अंदर, तो मोरेटोरियम का फायदा भी उठा सकते हैं, राइट। और उतना कैश आपके हाथ में ज्यादा से ज्यादा देर आ सकता है। और एक एलिमेंट जो कर सकते हो बैंकों के साथ आज की डेट में क्या हो रहा है कि सिडबी, नबार्ड, काफी बैंक्स ने कर रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। आरबीआई ने उनको फंड्स ट्रांसफर किए 50,000 करोड़, और वो आगे नीचे लैंडिंग कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जिसको बोल रहे हैं कोविड लोन्स, कोविड यानी ये जो कोरोना वायरस है, तो इसके नाम पे स्पेशल सपोर्ट लोन्स इस वक्त पे बिजनेसेस को दिए जा रहे हैं, कोविड लोन्स। नाउ दिस लोन्स आर एक्चुअली लो कॉस्ट लोन्स। तभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट लाइंस हैं, तो आप ये लो कॉस्ट लोन ले सकते हो जो टिपिकली 6 से 7%, 7.5% पे आपको शायद मिल जाए। और आपके जो पुराने लोन हैं जो मे बी 12, 13, 14% वाले हों, उनको रिटायर करके आप चीप लोन्स के साथ उसको हेल्प कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट, तो ये हो गया कैश फ्लो रिलेटेड। नाउ सेकंड पार्ट जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इसमें, कि जो 90 दिन में आपको करना है, इसमें होता है कि गो लीन। लीन मतलब पतला हो जाओ, इंग्लिश वर्ड। और इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि जीरो बेस्ड बजटिंग। ना व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग? इसमें यह होता है कि कॉर्पोरेट नॉर्मली जब भी हम बजट प्लानिंग करते थे, तो बजट प्लानिंग करते थे, तो उसमें होता क्या था कि पिछला साल इतना हमने एक्सपेंडिचर किया, इतनी रेवेन्यू आई, अगले साल के लिए बजट करते वक्त हम इस पे और 10% जोड़ दिया, 15% जोड़ के आगे बढ़ेंगे, ऐसी प्लानिंग करेंगे। बट जब टफ टाइम्स आते हैं तो होता क्या है, आपको जीरो बेस्ड बजटिंग में चले जाना चाहिए। इसका मतलब एवरी एक्सपेंस, हर एक खर्चा मस्ट बी जस्टिफाइड, कि ये खर्चा हमको इस वर्ष में, इस अगले क्वार्टर में क्या ये जरूरी है। तो जब हर खर्चे पर जब आप प्रश्न चिन्ह उठाएं, तो उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो बेस, जीरो से ऊपर चलेगा। और एवरी फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्शन, हर एक पे क्वेश्चन उठा के उसकी नीड्स और उसकी कॉस्ट के हिसाब से आप बजटिंग कर सकते हो। दूसरा काम ये कर सकते हो, इसमें आप अपनी सारी बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हो। दिस इज द टाइम
स्ट्रीमलाइन कर सकते हो कि अगर मेरा टाइम एफिशिएंटली यूज हो रहा है कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैं क्या टाइम की बचत कर सकता हूँ. कैन आई डू मोर, कैन आई स्पेंड लेस ऑन वेजेस एंड ओवर टाइम, कैन आई अवॉइड एनी अदर एक्सपेंस ऑन दिस. तीसरा एलिमेंट आप ये कर सकते हो, आप स्केल डाउन कर सकते हो. होता क्या है कि बिजनेस में कई बार ओनर्स, कई सारे बिजनेस में 3 4 5 बिजनेसेस होते हैं. आइडिया ये होता है कि चलो मैं यहाँ से कमाऊंगा, वहां से कमाऊंगा, ये मेरा रेवेन्यू बनेगा. बट कई बार क्या होता है कि 3 प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबल होंगी, आपका बिजनेस 5 टाइम्स ग्रो हो सकता है. पर इस वक्त पे कोई अगर ऐसी 1 2 प्रोडक्ट लाइन है जिस पे आप फोकस करें तो मे बी वो 500x टाइम्स ग्रो हो. तो अगर आप उसमें सारी एनर्जी इस वक्त डाल दें तो मे बी दैट्स अ बेटर ऑप्शन. अभी ये नेक्स्ट एजेंडा आइटम आ गया. तो हमने अभी 3 महीने का कर लिया. अभी हम बैलेंस 90 दिन, सॉरी 9 महीने पे जा रहे हैं, 270 डेज के प्लान पे, राइट. सो अभी इसमें क्या करना है कि डिप्लॉय स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. तो ये बेसिकली बहुत जरूरी है. इसमें आईटी सिस्टम्स एंड अ गुड आईटी एमआईएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अगर ये हम किसी तरह अपने बिजनेस में डिप्लॉय कर सकें और एक अच्छा तगड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, तो मेरी बजट्स मैनेज हो जाए और मेरी टाइमली इनवॉइसिंग मैनेज हो जाए. बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जैसे प्रोडक्ट बाहर निकला उसी समय इनवॉइस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम एंड सेंड टू कस्टमर. वहीं से आपका क्लॉक शुरू हो जाना चाहिए, राइट. रिव्यू एंड अपडेट प्राइसिंग. प्राइसिंग हो सकता है इस बार कई सिचुएशन में सप्लाई चेन ब्लॉक्स हैं और उसकी वजह से आपके कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, इफ यू आर अ सर्विस बिजनेस, उस पर असर पड़ेगा. तो डू नॉट हेजिटेट टू लुक एट ऑल द कॉस्ट एंड रिवाइज योर प्राइसिंग. और ये रिवाइज प्राइसिंग is kind of acceptable at this time, right? Because goods की आज की डेट में एक बोलते हैं ना scarcity situation है. आज की डेट में दूध भी बड़ी मतलब मारामारी से मिलता है बाहर. तो यदि कोई एमआरपी के ऊपर जब 2 3 रुपए चार्ज करता है तो इट्स ओके, देने के लिए तैयार होते हैं, बोलते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करें, नहीं मिल रहा, राइट. तो ये बेसिक आइटम्स का है. तो आज की डेट में इट इज ओके टू रिव्यू योर प्राइसिंग एंड अपडेट प्राइसिंग एंड कम्युनिकेट द रीजन वेल आपके कस्टमर्स को. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. थर्ड, रिव्यू एंड रीनेगोशिएट एवरीथिंग. सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि शुड आई बाय और शुड आई लीज, ये क्वेश्चन आप अपने आप को पूछ सकते हो दोनों के बीच में. तो अनलेस योर कंपनी इज फ्लश विद कैश, राइट, अनलेस योर कंपनी इज फ्लश विद कैश, you really want to maintain a cash balance for day to day operation. और जितना मैं उसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन अ कैपेक्स मोड, मैं इसको अगर ओपेक्स मोड में रख सकता हूँ. ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मंथली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अगर कर सकूं तो दैट इज बेटर इस टाइम पे. तो लीजिंग या रेंटिंग बिकम्स अ गुड ऑप्शन देन कंप्लीट आउटराइट बाइंग. नेक्स्ट, अपडेट एचआर एंड कॉम्पनसेशन एंड क्राफ्ट न्यू स्ट्रेटजी. उसमें होता क्या है टिपिकली कि आप अपने बिजनेस परफॉर्मेंस में जिसको बोलते हैं बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करें कि व्हाट इज द की रिजल्ट एरिया फॉर ईच पर्सन, ईच डिपार्टमेंट, और किसने कैसे अच्छा काम किया, मैं उसको कैसे मेजर करूं. तो उसके लिए बोलते हैं की रिजल्ट एरिया. तो आप ये की रिजल्ट एरिया हर एक बिजनेस के लिए, हर एक बंदे के लिए आप डिफाइन कर सकते हो. नाउ अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द लास्ट आइटम है स्ट्रैटेजी. अभी स्ट्रैटेजी बड़ा ही जिसको बोलते हैं थोड़ा सा अब्यूज्ड या मिसअंडरस्टूड वर्ड है या कॉन्सेप्ट है, राइट. और स्ट्रैटेजी पे अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारा जोक भी चल रहे थे. कोई बता रहे थे स्ट्रैटेजी पे कोई 15 20 दफा स्ट्रैटेजी की बात की. सो व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ ए हेल्दी बिजनेस? अगर ये मैं सवाल करूं, आप 2 सेकंड लें आपके सोचने में, एंड देन मैं आपको बताऊं कि एक हेल्दी बिजनेस के पास क्या होता है. एक हेल्दी बिजनेस के पास एक हेल्दी बिजनेस प्लान होता है. एवरी बिजनेस जो अपना पर्पस डिफाइन कर ले और उस पर्पस को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी इज व्हाट? हैविंग अ प्लान टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो अगर मेरा पर्पस डिफाइंड है कि मैं ये चाहता हूं, ये मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं सोसाइटी को, राइट, तो मैं कहां हूं और मैं इस रास्ते तक कैसे जा सकता हूं, उस जाने को, उस प्लान को बोलते हैं स्ट्रेटजी. तो जो बिजनेस अपना पर्पस डिफाइन कर सके और फिर वो क्रिएट कर सके अपनी स्ट्रेटजी टू अकम्प्लिश दैट पर्पस, वो बिजनेस
मोस्टली सक्सेसफुल होने के आसार होते हैं। अभी एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बच्चे, छोटे बच्चे, इनसे हम स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। कैसे? ये बच्चों के साथ हमने बहुत देखा है बचपन में कि कोई कोई बच्चे इतने क्रैंकी होते हैं, राइट? इतना शोर मचाएंगे जब उनको क्या चाहिए, एक आइसक्रीम कोन चाहिए, राइट? मम्मा के हाथ से छूट के सड़क पे लेट जाएंगे, हल्ला गुल्ला, रोना गाना इतना शुरू करेंगे कि पेरेंट्स को एम्बेरस कर देंगे। इतना एम्बेरस कर देंगे कि पेरेंट्स समझ जाएंगे कि यार ये एम्बेरसमेंट सहने से अच्छा एक इसको 50 रुपए की आइसक्रीम कोन दिला दो। अब बच्चे को ये बिहेवियर प्रोग्राम हो गया मन में, बच्चे के मन में स्ट्रेटजी तय हो गई कि जब भी मुझे आइसक्रीम कोन चाहिए तब मुझे स्ट्रेटजी क्या करनी है, रोना गाना करना है, तंग करना है, फ्लोर पे लेट जाना है, राइट? और वो प्रेडिक्टेबल पैटर्न के साथ चलता है और वो इसकी स्ट्रेटजी सक्सेस होती है और बच्चे को आइसक्रीम कोन मिल जाता है। तो सिमिलरली हम एडल्ट्स को भी यही करना पड़ेगा कि जो मैं चाहता हूं लाइफ में उसके लिए स्ट्रेटजी बनाऊं। मैं पहले ये तो करूं कि मैं चाहता क्या हूं। ये मेरे मतलब जो गुरु हैं, जो मैं योग प्रैक्टिस करता हूं, वो मुझे पूछते हैं हमेशा कि तुम चाहते क्या हो, क्या तुम क्लियर हो अपने मन में? और ये बड़ा पेचीदा सवाल है कि मैं क्या चाहता हूं, राइट? पहले मन में सोचूं फिर बाद में उसको लिखूं। तो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आप ये कीजिए कि हम चाहते क्या हैं इस बिजनेस से, मैं क्यों ये बिजनेस कर रहा हूं, मैं क्यों चाहता हूं, और एक बार वो लिख लूं और फिर उसका प्लान बनाऊं, तो देयर इज अ ग्रेटर सक्सेस कि आपकी स्ट्रेटजी अचीव हो सकती है, राइट? गोइंग अहेड, बिल्ड सस्टेनेबिलिटी। नाउ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी में होता क्या है कि जैसे मैंने कहा, सस्टेनेबिलिटी वो आयाम है कि बिजनेस मैं रहूं या ना रहूं, बिजनेस चलता रहे, राइट? तो इसमें मैंने डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट इज बिजनेस डेवलपमेंट। तो बिजनेस डेवलपमेंट जब सोचते हैं, ये भी बड़ा ब्रॉड टर्म है, राइट? कई बार क्लैरिटी होती है, कई बार नहीं होती। तो इसमें मैंने 3 ब्रैकेट में लिख दिया है कि बिजनेस डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, marketing and customer service. Now sales and marketing is not the same, by the way, right? Marketing helps you understand where the customer is. Marketing helps you connect कि ये मेरी प्रोडक्ट और सर्विस है और ये कस्टमर की नीड है, क्या मैं इसको मैच कर सकता हूँ, राइट? ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग हेल्प्स विथ क्रिएटिंग डिमांड फॉर वट एवर प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू वांट टू सेल, राइट? देन कम्स सेल्स, पहले मार्केटिंग फिर सेल्स। सेल्स में क्या करते हैं कि आप एक्चुअली जाकर के कस्टमर को अपना पिच करते हैं और कस्टमर बेनिफिट्स बताते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, और वो सेल खत्म होने के बाद आप उस कस्टमर को कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई बिजनेस डेवलपमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस। तो मैं जब अपने कंसल्टिंग प्रोफेशन में क्या करता हूँ, मैं कभी कभी असेस करता हूँ, अगर किसी कॉर्पोरेट के साथ मैं, मेरा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो जब मैं उनके लिए असेसमेंट करता हूँ कि लेट्स सी आपका बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटी कितना स्ट्रांग है, तो जब मेरे क्लाइंट मुझसे मांगते हैं असेसमेंट, और कभी कभार जब उसमें जब स्कोर आते हैं, एक असेसमेंट के नतीजे निकलते हैं, तो जब स्कोर आते हैं तो पता चलता है कि जब लो बिजनेस डेवलपमेंट का स्कोर आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि सेल्स आपकी जो ट्रेंड है, नॉर्मल, एक नॉर्मल अगर लीनियर ग्राफ है या ग्रोइंग ग्राफ है, ऐसा नहीं है। लो बिजनेस डेवलपमेंट का स्कोर है तो मतलब क्या होता है, आपकी सेल्स ऐसे 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 ऐसे, जिसको बोलते हैं रोलर कोस्टर हो जाता है, राइट? और ये कोई सेल्स नहीं, मतलब आई अंडरस्टैंड, एक होती है बिजनेस में सीजनैलिटी कि हाँ जी दिवाली आई तो एक स्पाइक आएगी, राइट? कोई त्योहार आया, अभी अक्षय तृतीया आ रही है तो एक स्पाइक आएगा गोल्ड सेल में। बट मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ सीजनैलिटी की, मैं बात कर रहा हूँ कि सेल्स बड़ी स्पाइकी है। तो लो बिजनेस डेवलपमेंट का जब स्कोर आता है तो उससे पता चलता है कि आपकी सेल जो है ऐसे ग्राफ है, राइट? फिर दूसरा उससे ये इंडिकेट होता है मुझे, अगर स्कोर आपके कम है तो, कि आपकी सेलिंग इज ओनली बेस्ड ऑन प्राइस, कि प्राइस बिकती है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, आप नहीं बिक रहा, आपकी कंपनी नहीं बिक रही, आपका केवल प्राइस बिक रहा है, राइट? तीसरा जो मुझे इंडिकेशन मिलती है जब बिजनेस डेवलपमेंट का स्कोर आपका कम होता है, तो उससे इंडिकेशन मिलती है कि आपकी सेल्स टीम जब देखो नए बिजनेस को ढूंढ रही है, नए बिजनेस को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, राइट? एंड चौथा मुझे ये इंडिकेशन मिलता है कि आपके पास एक्चुअली कोई बिजनेस की पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन के मैं अगर प्रेडिक्ट कर सकूं कि मेरा अगला बिजनेस कहां से आएगा, ऐसी कोई पाइपलाइन नहीं है। तो ये 3-4
मुझे इंडिकेटर, जैसे बोलते हैं ना आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी नब्ज चेक करता है, तो जब मैं कंपनी की नब्ज कैसे चेक करता हूं, मैं अपनी असेसमेंट रन करता हूं कंपनीज के साथ, और वो असेसमेंट में जब स्कोर आते हैं तब मुझे पता चल जाता है, आपके बिना बोले मुझे पता चल जाता है कि कहां पर आपकी दुखती रग है, राइट। तो अभी इसमें चेंज क्या करना है, चेंज तो करना होगा बिजनेस डेवलपमेंट में, तो चेंज सारा फोकस लाना होगा मार्केटिंग पे, सेल्स पे और कस्टमर सर्विस पे, राइट। अभी इसमें ये चेंज कैसे करें, अभी होता क्या है कि बिजनेस ओनर्स कई बार बहुत ही एक्टिवली एंगेज होते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत ही सुबह से शाम तक है, अगर मैं ना जाऊं अपने ऑफिस या वर्कशॉप तो मेरे बिना तो मेरा बिजनेस ही नहीं चले, ऐसा होता है। तो अगर मैं इनसे पूछता हूं, आप अगर बिजनेस में ना जाओ, राइट, एक हफ्ता ना जाओ तो क्या होगा, अरे बोला ये तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा, राइट। पर ऐसी स्थिति आप चाहते हो? नहीं, दिस स्थिति, ये सिचुएशन इज नॉट गुड। होना ये चाहिए कि अगर मालिक एक हफ्ता 10 दिन बाहर भी रहे तब भी बिजनेस चलते रहना चाहिए। अभी हो क्या रहा है, मालिक क्या मालिक की तरह काम कर रहा है या नौकर की तरह काम कर रहा है? उसके पास एक नौकरी है, अपने बिजनेस है बट नौकरी है अपने बिजनेस की, राइट। तो आर यू वर्किंग इन द बिजनेस और आर यू वर्किंग ऑन द बिजनेस? ये बड़ा फर्क है, राइट। इसमें आप प्रोसेस के द्वारा चेंज ला सकते हो। कैसे? स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होनी चाहिए, हर एक आदमी को पता होना चाहिए मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि मैं कैसे काम करूं, क्या काम करूं, एंड उसको हर एक आदमी को जब क्लियर हो तो देन दैट इज द टाइम यू कैन अफोर्ड टू स्टे अवे फ्रॉम योर बिजनेस, राइट। तो हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, मैनेज योर पीपल वेल, मैनेजमेंट की वर्ड, राइट। मैनेजमेंट हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई बैठ गए सेठ जी और सैलरी दे दी, तो दैट इज नॉट मैनेजमेंट। नो, मैनेजमेंट में काफी एक्टिविटीज होती हैं जो आप एग्जीक्यूट करो तो आपको गुड एफर्ट मिलेंगे, उसके गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। हर एक का केआरए सेट करो, की रिजल्ट एरिया, क्या आपका काम कैसे असेस होगा, अगर आपने काम अच्छा किया तो उसकी असेसमेंट हो, एंड फिर बाद में उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। रिसोर्सेज माने अगर वो सेल्स पर्सन है तो क्या उसके पास सेलिंग किट है, उसके पास सेलिंग स्क्रिप्ट है, राइट। बोलना भी यूनिफॉर्म आना चाहिए, एक नहीं कि एक सेल्समैन बड़ा ही हाइपर टाइप का बंदा है, बहुत बोलता है बहुत बोलता है, दूसरा सेल्समैन में भी नहीं है इतना हाइपर, हम बोलते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो क्या मैं कर सकता हूँ, सारे पांचों सेल्समैन एक बराबर बोले तो क्या मैं उनके लिए एक सेल्स स्क्रिप्ट बना के दे सकता हूँ? तो ऐसा जब मैं उनको रिसोर्सेज दूं और सब जाकर के एक ही सुर में गाएं तो ऑफकोर्स मेरा काम अच्छा हो सकता है। देन सस्टेनेबल बिजनेस यूनिट्स, लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि हैव अ बजट, राइट। बजट होना बहुत जरूरी है, कई बार हम बिना बजट के ही चलते हैं, कई जगह मैंने देखा है बिना बजट के चलते हैं, बट बजट होना बहुत जरूरी है। साल का बजट हो, आप क्या करना चाहते हो, साल का फिर ब्रोकन अप इनटू मंथ वाइज हो, तो आप मंथली उसको रिव्यू करें कि मेरा बिजनेस ऑन ट्रैक जा रही है मेरी गाड़ी या नहीं जा रही है, उसको देखना बहुत जरूरी है। एंड बजट कैन बी अ मूविंग मार्कर, बिकॉज अभी ये जो स्थिति आई है ये तो किसी ने प्लान नहीं की थी, एसएमई नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, सरकार नहीं, गवर्नमेंट नहीं, किसी देश ने नहीं सोचा था, राइट। दिस इज जिसको बोलते हैं ब्लैक स्वान इवेंट, तो ये तो अनप्लान था। बट आपके बिजनेस में प्लानिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए, और यदि बजट नहीं है तो आप सोच लो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। बिना बजट के चलना मतलब आप रास्ते पे चल पड़े हो, जहां रास्ता ले जाएगा मैं चला जाऊंगा, दैट इज नॉट द वे। अगर बजट हो तो आप अपने बिजनेस को और स्ट्रेंथन कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अभी इसमें ये जो ग्राफ है ये अगेन लेटेस्ट एक पता चला था, लेटेस्ट अप्रैल का सर्वे है। आप इसमें देख पा रहे हो सबसे टॉप सेक्शन में एमएसएमई बिजनेसेस, राइट। एमएसएमई बिजनेसेस केवल 6.3%, 6% ही ऐसे हैं जो फॉर्मल क्रेडिट बैंक से अवेल कर पा रहे हैं, राइट। हालांकि जीडीपी में बहुत बड़ा शेयर है, राइट, 30% शेयर है, बट क्रेडिट अवेलिंग बहुत कम है। तो क्यों, ये स्थिति क्यों है? तो उसमें लिखा हुआ है कि कई बार जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलाउ नहीं करता। अगर मैं 1 पर्सन कंपनी हूं, राइट, तो और 96% ऑफ द एसएमईज ऐसे हैं, ओपीसी जिसको बोलते हैं 1% कंपनी। तो जब 1% कंपनी है तो आपका स्ट्रक्चर इज नॉट सेट फॉर ग्रोथ, राइट। यू हैव टू स्केल योर स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं समझी। चला जाता हूं किसी की धुन पे, वो वाला गाना मुझे याद आता है, बट नो, दैट इज नॉट द वे। हमको एक प्रोसेस लेकर के चलना होगा, तब जाकर के ये फायदा होगा।
तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, राइट। अभी ये लॉन्ग टर्म प्लान पे आ गए, राइट। लॉन्ग टर्म प्लान है साल का प्लान, राइट। तो हमने अभी कवर किया अब तक 3 मंथ प्लान, उसके बाद 9 मंथ प्लान, और उसके बाद ये साल का प्लान। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है, बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बनाना पड़ेगा आपको। तो what does business operating system mean in the context of our business? So business operating system means daily, weekly, monthly work routines to run our business effectively. This is what it means. बेसिकली इसमें होता है कि डे टू डे कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन जो हो, वो एक ऐसा सिस्टम में बन पड़ा है कि हर एक बंदे को पता है कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है और बिजनेस कैसे आगे चलेगा। तो व्हाट डज इट लुक लाइक इन एक्शन? अगर एक बिजनेस में, जैसे मैं अगर एक कॉर्पोरेट में काम करता हूं, तो मैं कैसे उसमें बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम बिठाता हूं? तो उसमें ये होता है एक्शन में, ऑल एम्प्लॉइज all employees are focusing on key success factors for your business. क्या की सक्सेस फैक्टर? अभी फॉर एग्जांपल एक होटल इंडस्ट्री है, तो उसका की सक्सेस फैक्टर क्या है कि मेरे कस्टमर्स, मेरे गेस्ट आर ऑल हैप्पी विद द स्टे ओवर हियर और विद माय सर्विसेज, राइट। दूसरा, डोमिनोज पिज्जा फॉर एग्जांपल, उसका की सक्सेस फैक्टर क्या है कि नॉट ओनली पिज्जा अच्छा हो, बट मेरी डिलीवरी ऑन टाइम हो, राइट। तो आपके बिजनेस के की सक्सेस फैक्टर क्या है? किसी एयरलाइन का की सक्सेस फैक्टर हो सकता है कि ऑन टाइम फ्लाइट्स, ऑन टाइम डिपार्चर्स, तो दैट्स अ की सक्सेस फैक्टर। तो जब सारी ऑर्गेनाइजेशन इज फोकसिंग ऑन व्हाट आर द की सक्सेस फैक्टर्स फॉर माय बिजनेस, यू हैव अ ग्रेट चांस एट सक्सेस। सारे एम्प्लॉइज को, ऐसा नहीं कि आप ही के दिमाग में हो, वो ट्रांसलेशन सारी नीचे तक जानी चाहिए, राइट। सेकंड, ये बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टेप्स बता रहा हूं कि व्हाट डज बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम लुक लाइक। सेकंड पॉइंट इज, हर एक बंदे को उसकी अकाउंटेबिलिटी असाइन होनी चाहिए कि व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअली, व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड हाउ विल आई असेस यू इफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, राइट। सिर्फ एक बंदे का चेहरा अच्छा है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो क्या तुमने अच्छा काम कर लिया? नो 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 नो, उसकी मेजरमेंट बड़ी ऑब्जेक्टिव। यहां पर ये मैनेजमेंट के फंडे आ जाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी उसकी फिक्स हो जाए कि अगर तेरा ये टारगेट है, ये टारगेट करने के लिए तेरे को पीछे ये काम करने पड़ेंगे। हैव यू डन दैट? इफ यू हैव डन दैट, देन you have done a good job, right? Third, leaders, the managers and the leaders of the business, they are engaging with their teams on a daily basis to talk about कि आज की बिजनेस प्रायोरिटी क्या है, आज के इश्यूज क्या हैं, आपके तकलीफें क्या हैं, what are the opportunities in the market, right? And to fix expectation कि आज ये करना है, right? तो daily field reviews, जहां पे senior leaders will hear from the frontline staff, और उसको उसको सुनेंगे, उसका फीडबैक लेंगे और एक्शन लाएंगे बिजनेस में। फिर यही लीडरशिप और मैनेजर्स करेंगे मंथली टीम रिव्यू ऑफ रीसेंट डेटा ट्रेंड्स कि क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, और अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी है, किया नहीं किया, क्या रिसोर्सेज चाहिए और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, राइट। फिर सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ड्राइव अ पॉजिटिव एंड लास्टिंग बिहेवियरल चेंज टू नेविगेट थ्रू दिस बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। तो डीप डाइव जो फाइनेंस वाला है वो हम नेक्स्ट वेबिनार सीरीज में कवर करेंगे। बट अभी मैं आपको एक स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, जो स्लाइड बताती है ड्रीम के बारे में, राइट। अभी होता क्या है, वेबिनार का मौसम है आजकल, राइट। बहुत वेबिनार्स हैं, बहुत स्पीकर्स हैं, बहुत मजे आ रहे हैं सुन के, क्योंकि घर में बैठ के और तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो सुन रहे हैं कई लोगों को। पर क्या ये सुनने से, ये सारी मोटिवेशनल चैट सुनने से, राइट, ये सुनने से क्या इंप्रूवमेंट आ जाती है हमें? क्या हमारे रूटीन लाइफ में चेंज आ जाता है, राइट? कितने लोगों के आता होगा? बहुत कम लोगों के आता होगा, राइट। ऐसा मेरा मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम लोग चेंज जो होना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पाते? इसका कारण कुछ बताएंगे मेरे साथ? तो इसमें होता क्या है कि ऐसा है नहीं कि बुरा है कि अगर आप चेंज ना करना चाहो या ना हो कोई मोटिवेशनल चैट सुनने के बाद, तो इट्स ओके, राइट। बट व्हाई डोंट वी डू द थिंग्स दैट वी नीड टू डू? सो इसको मैं बोलता हूं कि ये एक ड्रीम है। हम सभी अगर हिंदी में बोले तो एक अचेतन अवस्था में, ड्रीम अवस्था में। तो ड्रीम क्या है कि यार मैं आजकल मैं बहुत बिजी हूं, या मैं आजकल बड़ा स्ट्रेस्ड हूं, मैं बहुत कुछ चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स में हैंडल कर रहा हूं बिजनेस में, शायद आपको पता भी ना हो। ऐसा ये हमारा ड्रीम चलता है। मैं इतना बिजी हूं कि मैं परिवार पे टाइम नहीं दे पा रहा हूं।
मैं इतना बिजी हूं कि मैं अपनी सेहत पर टाइम नहीं दे पा रहा हूं। मैं इतना बिजी हूं कि मेरा आज मेरी उम्र हो गई 40, 50, 60, मैं चेकअप के लिए एनुअल चेकअप होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। राइट। एंड सीक्रेटली मैं आपको बताना भी चाहूँ कि समटाइम्स मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे आपे में नहीं है। राइट। बट उम्मीद पर दुनिया कायम है। बट मेरी उम्मीद यह है कि शायद 3 महीना 6 महीने में ये सिचुएशन सुधर जाएगी, संभल जाएगी, और उसके बाद फिर सब ठीक ठाक होगा, अच्छे दिन आ जाएंगे। राइट। और उसके बाद जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं अपने हेल्थ चेकअप भी कराऊंगा, मैं अपने हेल्थ रिजीम को भी फॉलो करूंगा, मैं फैमिली को भी टाइम दूंगा। राइट। और मैं फिर बाद में रिलैक्स और हैप्पी हो जाऊंगा। राइट। तो इस स्थिति को मैं बोलता हूं कि ये एक सपना है, सपना, ड्रीम। हम सबका ड्रीम है कि कल जो आने वाला कल है वो अच्छा होगा। आज मैं बस किसी तरह इस सिचुएशन को निपट लूं। तो कितने लोग इस ड्रीम के साथ आइडेंटिफाई करते हैं? कितने लोग? कितने लोग? ओके, दैट्स नाइस। राइट। तो ये एक मैंने अपने जो गुरु से सीखा वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिंपल सा प्रोसेस है जो मेरे गुरु ने कुछ टाइम तक फॉलो किया और मैंने भी कुछ टाइम तक फॉलो किया। क्या है इसमें फॉलो किया कि उन्होंने क्या किया कि किसी को एम्प्लॉय किया मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया, उसको पैसे दिए। पैसे दिए किस लिए? कि भाई तुम रोज मुझे फोन करना एक निर्धारित समय पर, रोज मुझे फोन करना एक निर्धारित समय पर, और कुछ सवाल पूछना। ऐसा नहीं है कि रोज अलग सवाल, रोज सेम सवाल। और वो सवाल कौन तय करेगा? सवाल भी मैं, एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन पेपर मैं सेट करूंगा। राइट। और क्वेश्चन पेपर का आंसर कौन देगा? मैं ही आंसर करूंगा। तो सवाल भी मैं ही बनाऊंगा, आंसर भी मैं ही करूंगा, और आंसर होगा यस नो में, या तो यस या तो नो। तो सवाल भी मैं बनाऊंगा, आंसर भी मैं कराऊंगा, और उसकी स्कोरिंग पास या फेल, यस या नो, वो भी मैं ही करूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ है इतना है कि तुम मुझे रोज फोन करना। ये प्रोसेस मैंने भी 1 महीने के लिए अपनाई, 1 मंथ। राइट। तो मैंने भी किसी को पैसे दिए, अब जो तुम मुझे रोज शाम को 8 बजे फोन करना और ये क्वेश्चंस पूछना, और मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और ये क्वेश्चन क्या करते हैं मैं आपको सिंपल नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं चेंज करने में। राइट। तो ये क्वेश्चन पढ़िए आप। राइट। इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट यू हैव चेंज्ड इन योर अडल्ट लाइफ? राइट। अभी कई लोग बोल सकते हैं वो आई वुड हैव चेंज, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया, या मैंने शराब पीना छोड़ दिया, या मैंने नॉनवेज खाना बंद। नो 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 नो, दैट्स नॉट द चेंज आई एम टॉकिंग ऑफ। ये मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूं कि आपके बिहेवियर में बदलाव आया, और उसके वजह से आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके समाज में आपके होने से खुशी फैली। ये वो सवाल है। तो ऐसा कोई आपने चेंज किया? तो ये कुछ एग्जाम्पल, 6 क्वेश्चंस हैं जो आपने अपने आप को डेली पूछने हैं। और क्वेश्चंस क्या है? डिड आई डू माई बेस्ट टू बी हैप्पी? राइट। बी हैप्पी इज ए चॉइस। बी हैप्पी, यू कैन ऑलवेज कीप ब्लेमिंग द एनवायरमेंट, यू कैन ऑलवेज ब्लेम, ओ स्थिति ये नहीं थी, ओ ये सिचुएशन था, ओ सरकार ने ये कर दिया। राइट। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो डिड आई फाइंड माई बेस्ट, डिड आई डू माई बेस्ट टू बी हैप्पी, डिड आई डू माई बेस्ट टू फाइंड मीनिंग? मीनिंग, एम्प्लॉई एंगेजमेंट एक टर्म है कॉर्पोरेट जगत में, कॉर्पोरेट्स में बोलते हैं एम्प्लॉई एंगेज करो, एम्प्लॉई एंगेज करो। अरे भाई एम्प्लॉइज तो एंगेज करो, बट एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं अपने आप को एंगेज करने के लिए बिजनेस में? आर दे एंगेजिंग देमसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ द बिजनेस? तो दैट्स व्हाट आई मीन। Did I do my best to be fully engaged? Did I do my best to find meaning in the work that I do? Right? Is there a deeper meaning? And did I do my best to build positive relationships at work, at home, in the society? Did I do my best to set clear goals? जैसे मैंने पहले पूछा था, तुम चाहते क्या हो? And did I do my best to make progress towards goal achievement? Believe me, जब रोज ये सवाल आपसे पूछे जाए और आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना है, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको शर्म आएगी, जैसे मुझे आई थी। आपको शर्म आएगी कि यार हद हो गई, मैं रोज कैसे अपने ही बनाए हुए एग्जाम पेपर में मैं अपने आप ही कैसे फेल हो सकता हूं? दिस कैनॉट बी। और किसी दिन आप सोचोगे जाने दो यार, अभी मुझे करना ही है,
ये कॉल आएगा और मुझे करना ही है, राइट? और बिलीव मी, इसके बाद बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाता है, और जब आप ये 30 दिन करते रहो तो उसके बाद ये हैबिट बन जाती है। और दिस इज हाउ यू फॉर्म हैबिट्स, गुड हैबिट्स। यू वांट टू फॉर्म गुड हैबिट्स, राइट? तो इसका फायदा ये हुआ कि बहुत पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज आया। तो दिस इज माय ऑफर टू यू नाउ। ये एक 2 वीक स्टडी है, राइट? और ये 2 वीक स्टडी पहले भी हुई थी। तो इस 2 वीक स्टडी में ये है कि यू कैन चूज टू सेंड मी एन ईमेल, राइट, विद द सब्जेक्ट जो उसमें लिखा है, and you will get an email from me saying that these are the questions that I'm asking you, and you have to respond in your own mind, right? If you choose to, for 2 weeks, I will send you a daily mail if you choose to engage with me, right? And at the end of this period, I will do a survey with you to see what are the results. And I'm sharing with you, this study has been done earlier, and see the results, right? See the results with 2,800 participants almost, right? And many of them reported improvements on multiple parameters, right? Look at the results for yourself. And less than 1% reported that there was no change, right? मतलब इससे ये हो सकता है कि आपके साथ कुछ अच्छा ही हो, बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा, right? Right? So this is one interesting thread that I just wanted to deliver to you after a business lecture. And next part is deep dive into finance, जो हम next webinar में करेंगे, right? तो आज के दिन का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू एंजॉयड, गिव मी अ थम्स अप, राइट? एंड वी होप टू कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक अगेन, probably same time, with deep dive into finance, right? And if you have any feedback, any questions, please write into me. Thank you very much. Thank you for your time. You are lovely people. Love speaking with you.